Hello friends, welcome to Achievers Educate. Our today's topic is current electricity or electric current. Across all the boards, ICSE, IGCSE, CBSE and SSE, we have this chapter being introduced in our 10th standard. What is current? Before that, what are charges? We already know electrons. The give and take of electrons is the charge distributed here and there. We are talking about electrons. Which electrons? The free electrons which will move. We have two types of materials, if you know. One is called as conductor, one is called as insulator. What is a conductor? A conductor is a device which helps conduction of heat and electricity. So heat part we will not do in this chapter, but yes, current, electricity. So what is electricity? Have you got a shop? Have you fiddled with the electrical points? No? Don't do that. This is not acceptable. Okay, what is current electricity? This is the topic. What is current? I say current is flow of charges. In our case, charges is electrons. In electrolysis, we will have different charges. But here in physics, we will have only electric current, which will be conducted by electrons. Yes. So electrons are the charges which will constitute current. So what is current? Current is the rate of flow of charges. So charge, you know the unit of charge? Charge ka unit is coulomb. And what is the unit of time? Second. So what is the unit of current? Coulomb per second. There is a new name given to this. It is called ampere. So what is current? Current is rate of flow of charge. So what is 1 ampere? If I say 1 ampere current, I should say 1 coulomb of charge flowing in 1 second. This is the way to find in physics. So what is 1 ampere? If somebody asks you, what is 1 ampere? Define 1 ampere. How would you define 1 ampere? It is 1 coulomb of charge passing per unit time. Per unit means 1 second. If 1 coulomb of charge passes in 1 second through any cross section, through any conductor, through any area, the current passed in the circuit is called 1 ampere. Any problem in 1 ampere? So what is 1 ampere? 1 coulomb upon 1 second. 1 coulomb में कितना charges होता है friends? 1 coulomb में कितना charges होता है? Q is Ne, number of electrons. इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है friends? minus 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So if you take a coin और उसको ब्रश करते जाओ, घिसते जाओ और उसमें से चार्जेस निकालते जाओ, तो इतने चार्जेस जब निकलोगे 10 raised to 19 तो आपको 1 coulomb ऑफ चार्ज मिलेगा इतने इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद. तो व्हाट इज Q? Any नाम नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1. माइनस देने की जरूरत नहीं है मैग्नीट्यूड में. माइनस तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर ऑपोजिटली चार्ज. और कुछ नहीं है फ्रेंड्स. Is it okay? So what is 1 ampere? We will define again. What is 1 ampere? If 1 coulomb of charge passes through a given cross section in 1 second, or if 1 coulomb of charge passes per unit time, the current passed in the circuit is called 1 ampere. कुछ प्रॉब्लम है? चलिए 1 ampere आपने समझ लिया. 1 ampere is a very huge current. 1 ampere बड़ा करंट है, झटका आएगा, मजा आएगा. तो छोटे यूनिट्स क्या है? 1 मिली एम्पियर. व्हाट इज 1 मिली एम्पियर? 10 raised to minus 3 amperes. 1 micro ampere. Micro means 10 raised to minus 6. Milli means 10 raised to minus 3. कोई प्रॉब्लम है यहां तक? बराबर है? चलिए इलेक्ट्रॉन्स क्यों फ्लो होंगे? कब फ्लो होंगे? इलेक्ट्रॉन्स कब फ्लो होंगे? एक सर्किट लेते हैं. समझो मैंने इधर एक बैटरी लगाई, सेल लगाई और मैंने
ये फैन से या लाइट से पास किया। जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, ये जो कंडक्टर था इसमें इलेक्ट्रॉन्स थे, एंड इलेक्ट्रॉन हैव अ नेगेटिवली चार्ज, दे हैव एफिनिटी टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। आप बताइए पॉजिटिव किधर है? इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, इसको हम नेगेटिव बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां भागेंगे? इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। भाग रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? इलेक्ट्रॉन्स यहां भागेंगे और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। एक बार सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट पास होता है। इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट? द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिख रहा है आपको? करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन है। लेकिन हमको क्या पूछते हैं? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? आप अगर माइनस से प्लस बोलेंगे आपको मिलेगा 0, अंडा। तो माइनस से प्लस नहीं बोलना है, क्या बोलना है आपको? कन्वेंशनल करंट। हमारा कन्वेंशन क्या है? एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। और हमारा कन्वेंशन ये बोलता है कि हमारा करंट कभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद रहेगा व्हाट इज द कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन? करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, एनर्जी फ्लो होती है। ये प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी है। तो करंट कुछ होता है? करंट कुछ नहीं होता है, इट्स अ कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, उसी को हमने करंट कहा है। करंट ऐसे कुछ नहीं होगा, बट करंट आपको मजा आएगा। इफ यू फिडल विद द इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, मजा आएगा कि नहीं? शॉक लगेगा, झटका लगेगा। इलेक्ट्रिक करंट लग गया, करंट हो गया, करंट लग गया। दिस इज द टर्मिनोलॉजी वी यूज। सो कन्वेंशनल करंट एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों ही आना चाहिए हमको। करेक्ट? अब ये करंट कहां फ्लो होगा? कंडक्टर्स में कि इंसुलेटर्स में? कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स का एग्जांपल दे सकते हो? कॉपर, आयरन वायर्स देखे आपने? कॉपर के, आयरन के। गोल्ड भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, मस्त। गोल्ड में तो हाँ यस इनर्ट, तो उसमें रस्ट भी नहीं होगा। तो गोल्ड के वायर्स लगाइए ना। पहले दिन वायर्ड सिस्टम होगा, दूसरे दिन वायरलेस, सब चोरी करके ले जाएंगे। गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव, यू हैव टू think on economical terms also. Anyways, इंसुलेटर भी पता होना चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिकल काम कर रहा हूं तो मुझे चप्पल रबर की, प्लास्टिक की, ग्लास की, वुड के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो शॉक लगेगा। शॉक कब लगेगा? जब सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो शॉक नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ट्रैक्शन वायर्स देखे? ट्रेन के ऊपर ब्लैक ब्लैक वायर्स रहते हैं, देखा है आपने? आप उसको एक हाथ से लेके लटक जाइए, धरती को टच नहीं करिएगा, ग्राउंड को यू शुड नॉट टच, बस लटक जाओ। क्या होगा लटकने के बाद? आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आप हवा में हैं। हवा इज नॉट अ कंडक्टर, योर बॉडी इज अ कंडक्टर। आपके बॉडी में क्या है? हेमोग्लोबिन। हेम मींस आयरन। आपका बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अर्थ को इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे लगते हैं, इट सक्स ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, हेंस करंट पासेस। तो जैसे ही आप हवा में हो आपको करंट नहीं लगेगा, जैसे आपने टच किया या दोनों हाथ कंप्लीट किया, करंट पास होने लगेगा। तो करंट ऑलवेज पासेस इन अ क्लोज्ड सर्किट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ये सर्किट लिया तो आप लगाते हैं एक की मतलब बटन। आप जब तक इस बटन को ऑन नहीं करते हैं, क्या करंट पास होता है? नहीं। बटन मींस क्या है? इतना सा गैप है, करंट जंप नहीं कर सकता है। जब आप बटन ऑन करते हैं तो ये कनेक्ट हो जाता है, तभी पास होता है। इज इट करेक्ट? इसलिए ऑलवेज करंट विल पास इन अ क्लोज्ड सर्किट ओनली। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी कैनॉट बी फॉर्म, क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड, खाली यहां से वहां कन्वर्ट होती है। तो एनर्जी आती कहां से है? उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? मैंने बोला ये सर्किट में, ये एक सर्किट है, यहां पर
ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर जा रहा है, करेक्ट, यहां से यहां पे जा रहा है, तो काम किया ना उसने, वर्क किया कि नहीं, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता कहां से है, तो हम लोग फिजिसिस्ट साइंटिस्ट हम लोग ने बोला कोई इलेक्ट्रिक चार्ज इंफिनिटी से हमारे यहाँ पे देखे क्या, तो अपनी एनर्जी उसने उस चार्ज में दे दी, ये कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब उसमें ताकत कहां से आएगी, हम लोग डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट भी बोलते हैं, उसका यूनिट या सिंबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन वोल्ट, उसका यूनिट है, करेक्ट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन। आपने क्या किया, ट्रांसफर किया चार्जेस को यहां से यहां, तो वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्जेस, कौन सा चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारे हाथ में आता नहीं है, ये सब कॉन्सेप्चुअल है, थियोरेटिकल है। सो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने लाया और यहां पर रखा, कहां से, इंफिनिटी से लेके आया, तो मैंने काम किया, वो काम उसमें stored हो गया। So what is electric potential? How will you define electric potential? It is the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. कहां से कहां लाया, वहां से यहां लाया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। What is electric potential? It is the work done in bringing a unit charge from infinity to the point. और दो जंक्शन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तभी चार्जेस मूव होंगे। इफ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, समझो आपके घर में टैंक है, टंकी टंकी पानी की टंकी, तो पानी की टंकी में हमने बीच में होल किया है और पाइप से ये दोनों टंकियों को कनेक्ट किया है। आपको पता है पहले यहाँ पे पानी आ रहा है, पानी के लिए आउट इनलेट यही है, पानी आ रहा है, फिर जैसे यहाँ पे आएगा पानी यहाँ पर जाने लगेगा, जब दोनों इक्वल लेवल पे हो जाएंगे तो साथ में भरते हैं, देखा है आपने, एनर्जी विल नॉट फ्लो एट अ सिंगल सेम लेवल, एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, राइट। तो एनर्जी फ्लो करने के लिए डिफरेंस, वही डिफरेंस बैटरी क्रिएट करती है, बैटरी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेल में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और उससे क्या होगा, चार्जेस मूव करेगा। अगर बैटरी नहीं होगी चार्जेस मूव नहीं करेगा। आपके घर में भी दो वायर्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चेंज डिफरेंस होना चाहिए, उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, जो चार्ज। तो लेट अस रीडिफाइन दिस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट। तो हम लोग इसका यूनिट भी देखेंगे, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। जूल पर कूलम इस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। जूल पर कूलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। याद रहेगा फ्रेंड्स, याद रखना ही पड़ेगा, एग्जाम देना है। जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं। तो व्हाट इज 1 वोल्ट, 1 जूल अपॉन 1 कूलम, इसको 1 वोल्ट बोलेंगे। डिफाइन करिए, व्हाट इज 1 वोल्ट, इट इज the work done with how much work is done, 1 joule of work is done. If 1 joule of work is done in bringing a unit test charge, unit मतलब 1 ही कूलम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। If 1 joule of work is done in depositing, bringing, transferring a unit या 1 कूलम charge from infinity to that point, then electric potential is called 1 volt. Any problem in this? Can we go to the next topic? The next topic today is Ohm's law. What is Ohm's law? Very important. Ohm, Baba Ohm is a very important person in our chapter. ये Ohm law क्या बोलता है? Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law क्या कहता है? So long as the physical state of the conductor remains the same, the potential difference V applied between the two ends of the conductor bears a constant ratio to the current I flowing through it.
थोड़ा फास्ट हो गया, चलिए स्लो स्लो देखते हैं। मैं टेम्परेचर, वायर का साइज, वायर का क्वालिटी, मतलब मटेरियल कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं, उसके बाद ये लॉ अप्लाई करूंगा। अगर कुछ भी चेंज किया तो लॉ फिर चेंज हो जाएगा ना, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो वो बोलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, या आप कोई भी कंडीशन चेंज मत करिए, टेम्परेचर, वायर का साइज, वायर का मटेरियल, डोंट चेंज एनी पैरामीटर्स। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग I through a conductor is directly proportional to the potential difference we applied across the two ends. नहीं समझा मुझे, आपको समझा? चलिए ऐसे देखते हैं। अगर मैं 1 वोल्ट करंट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था तो मुझे करंट 2 एम्पियर आ रहा था। अब मैं इसको बढ़ाता हूं, 1 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट लेता हूं, तो मैं देखता हूं कि 4 एम्पियर आ रहा है। अब मैं 2 वोल्ट की जगह 3 वोल्ट लेता हूं, 3 वोल्ट लिया तो 6 एम्पियर आ रहा है। मैंने 4 वोल्ट लिया तो 8 एम्पियर आ रहा है। आप देख रहे हो जैसे जैसे ये बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं तो करंट भी बढ़ रहा है और लीनियर मैनर में बढ़ रहा है। अगर मैंने V और I को प्लॉट किया ग्राफ में, आप प्रैक्टिकल्स में करने वाले हैं एग्जाम में और आपके स्कूल में भी करेंगे, आपने VI को प्लॉट किया तो आपको एक क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन मतलब जैसे जैसे आपने करंट बढ़ाया वोल्टेज बढ़ा, या फिर वोल्टेज जैसे जैसे आपने बढ़ाते गए करंट भी बढ़ता गया। ये एम्पियर्स में है, ये वोल्टेज वोल्ट्स में है। इसको बोलते हैं लीनियर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब लॉ वापस बोलता हूं मैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर को चेंज करोगे तो ये चेंज होंगी वैल्यूज। क्यों, थोड़ी बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पहले लॉ के ऊपर ध्यान देते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the voltage applied across its ends. आप वोल्टेज को एंड्स पे ही लगा रहे हैं इस वायर के, इसलिए across its ends बोलते हैं। At constant temperature, the current I flowing through the conductor is directly proportional to the voltage applied across its ends. तोते के जैसे याद करना, ओम का बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी काफी बार आता है normally. What is Ohm's law? At constant temperature, the current I flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference we applied across its ends. Right? Once again, last time. Yes. Can we all together? Yeah. At constant temperature, the current I flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference we applied across its ends. मतलब V is proportional to I, किया है ना हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, यस मैथ्स में। सो V is equal to constant into I, इस कांस्टेंट को R बोलते हैं। V is equal to ईयर, बबीता का ईयर होता है ना सब टीवी पे, तारक मेहता में, वैसे V is equal to ईयर। व्हाट इज R? R is called रेजिस्टेंस। R होता क्या है, V अपॉन I। इसका यूनिट क्या है R का, वोल्टेज अपॉन एम्पियर्स। इसका नाम क्या है, ओम। इसका सिंबल क्या है, ओम। रेजिस्टेंस के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेंगे, देखेंगे। थैंक यू माय फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर, आपके कमेंट्स मोस्ट वेलकम है। थैंक यू।